Good morning, students. Today we will discuss about our body, means our body parts, and it is the chapter 3 of our EVS textbook. And what is the name of chapter 3 of EVS textbook? My body parts. Okay, so let's start. Now let us start from the starting, means from the top of our body. So what is present on the top of our body? These are hairs. These are hairs. Okay. So can I write name? See. Can you see this boy? So what is present on the top of its body? Hairs. Okay. So now the next part of our body is our face. Our face. Our hairs and our face. So this whole part is called as a face. Now our face is different body parts. This is our forehead. This is our forehead. हिंदी में हम इसको क्या अपना माथा बोलते हैं ना. So the place, the part between our hairs and our eyebrows. This is our forehead. Okay, now next to forehead is our eyes, and what is present above our eyes? Eyebrows. So these are eyes. And how many eyes do we have? We have 2 eyes. And then nose, and then our lips, and below the lips is our chin. This is our chin. Now we have to understand an important concept. See, I have already told you that the top of our body has our hairs. Okay? Now the hairs and our face, this completely comprise and said as head. ठीक है. सबसे पहले हमारी बॉडी के सबसे ऊपर क्या होता है? हमारे हेयर्स होते हैं. क्या होते हैं हमारे? हेयर्स. हेयर्स के बाद फोरहेड, देन आईब्रोज, आईज, नोज, लिप्स एंड चिन. लेट्स अगेन. हेयर्स, forehead, eyebrows, eyes, nose, lips, chin. This complete is known as head. So it means head is made up of 2 parts, that is our hairs and our face, and there are a lot of body parts on our face. Clear? Now let's move. Now next to chin, what is there? Neck. So neck is a part of our body which joins our complete head and lower body. So this is called as neck. Clear? Now at the end of the neck, where the neck ends, it joins 2 arms of our body. It joins 2 arms of our body. Okay. And now what is the starting point of our arms? Our arms are joined to our body. Our arms are joined to our body through a joint, and this joint is called as shoulder. And this joint is called as shoulder. See, this is our neck and these are our arms. And our arms are joined to our body with this joint, and this joint is called as shoulder. This joint is called as shoulder. Okay, now let's discuss about our arms. See, this complete is known as arm.
ठीक है, दिस इज नोन एज आर्म. नाउ आवर आर्म्स ऑल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. क्लियर? दिस इज आवर अपर आर्म and this is our lower arm. See, this is our upper arm and this is our lower arm. See in this picture, this is our upper arm and this is our lower arm. Okay, now अब देखो जो हमारी अपर आर्म है और हमारी लोअर आर्म है, it is joined with a joint that is called as elbow. नाउ सी दिस पिक्चर. अब आप इस पिक्चर को देखो, इसमें इस बॉय की एक कंप्लीट क्या है, आर्म है, लेकिन ये आर्म दो पार्ट्स में डिवाइड की हुई है. जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, अपर आर्म, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, लोअर आर्म. अब देखो, अब हम अपनी आर्म को ऐसे बेंड भी कर सकते हैं ना, ऊपर की तरफ बेंड. ये क्यों आर्म को बेंड कर सकते हैं, बिकॉज ये जो हमारा अपर पार्ट है, हमारा ये जो आर्म का अपर पार्ट है और जो हमारा लोअर पार्ट है आर्म का, ये किससे ज्वाइन किया हुआ है, एल्बो से. किससे ज्वाइन किया है, एल्बो से. सो एल्बो इज ए जॉइंट. अगर ये एल्बो नहीं होता तो क्या होता, हमारी ये कंप्लीट आर्म हमेशा सीधी रहती, हम इसको कभी भी इस तरह से बेंड नहीं कर सकते थे. सो दिस जॉइंट इज कॉल्ड एज एल्बो. ओके, सो this is our arm, this is our arm, this is elbow. Now अभी आर्म के जब नीचे आएंगे तो क्या है, ये हमारे hands. These are our hands. These are our hands. And how many fingers does a hand have? We have 5 fingers in one hand. 5 fingers in one hand. 5 fingers in one hand. नाउ अब ये जो हमारी 5 फिंगर्स है ना, इसके भी अलग अलग नेम्स हैं. इट ऑल्सो हैज डिफरेंट नेम्स. दिस इज कॉल्ड एज थंब. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्न, अभी हमने आर्म्स के बारे में पढ़ा और आर्म्स में मैंने आपको एल्बो और हैंड्स के बारे में बताया. और मैंने आपको बताया कि अगर एल्बो नहीं होगी तो हम अपनी आर्म को बेंड नहीं कर सकेंगे. ठीक है, अब देखो, कैन यू मूव योर हैंड्स लाइक दिस? आप अपने हैंड्स को ऐसे मूव कर सकते हो? यस. एंड वाई, हाउ इट्स पॉसिबल? और ये ऐसा क्यों कर सकते हैं हम बेंड? क्योंकि हमारे जो आर्म है और हमारे हैंड्स हैं, इसके बीच में एक जॉइंट होता है. ठीक है, ये वाला जॉइंट, इसकी वजह से हम अपने आर्म, अपने हैंड्स को बेंड कर सकते हैं. ठीक है, कर सकते हैं ना, ऐसे घुमा सकते हैं, आप भी घुमा के देख सकते हो. ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, रिस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रिस्ट. हिंदी में इसको कलाई भी बोलते हैं. हम राखी बांधते हैं ना जहाँ पर, उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्ट. तभी तो जो हम हैंड में वॉच डालते हैं उसको रिस्ट वॉच बोलते हैं. ठीक है, उसको रिस्ट वॉच क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उसको रिस्ट पर पहनते हैं. ठीक है, तो अभी आपको पता चला इस पार्ट को क्या बोलते हैं, हम रिस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रिस्ट बोलते हैं. तो अभी हमने कंप्लीट आर्म को डिस्कस किया. दिस इज कंप्लीट आर्म, our elbow, our hands, fingers, thumb and wrist. Okay, so now let's move. अब देखो this portion, ठीक है, this is called our chest. Okay, neck के जो हमारा नीचे का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, chest. Clear? और so this is called our चेस्ट. अब चेस्ट के नीचे क्या होता है हमारा, स्टमक. क्या होता है, स्टमक. हम खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है, स्टमक में. और जब हमें भूख लगती है तो चूहे भी कहाँ कूदते हैं, स्टमक में ही कूदते हैं. क्लियर? तो चेस्ट के नीचे क्या है, स्टमक. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू अवर लेग्स. अब हम कहाँ जाते हैं, लेग्स की तरफ. अब देखो, जैसे हमारी आर्म्स थी ना, हमारी लेग्स भी एकदम बिल्कुल वैसे ही होती हैं. ठीक है, जैसे मैंने बताया था हमारी आर्म्स के 2 पार्ट्स होते हैं, अपर आर्म, लोअर आर्म, और दोनों एल्बो से जॉइंट होते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जो लेग्स होती हैं सेम होती हैं. हमारी लेग्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, दिस कंप्लीट इज कॉल्ड एज लेग. ठीक है, स्टमक के नीचे का पूरा पोर्शन हमारे फीट तक क्या बोला जाता है, लेग्स बोला जाता है. ठीक है, अब इस कंप्लीट पोर्शन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, जो हमारे स्टमक के नीचे जो हमारा लेग्स का पोर्शन होता है उसको हम थाइज बोलते हैं.
क्या बोलते हैं? थाइस। मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज थाई। अब देखो, क्लियर? सी दिस पपेट, दिस कंप्लीट पोर्शन आवर हाफ लेग इज कॉल्ड एज थाई। ओके, अब देखो थाई के नीचे एक राउंड राउंड बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। हमारी लेग्स में ही एक राउंड राउंड जॉइंट होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है? एक जॉइंट होता है। जैसे हमारा एल्बो राउंड जॉइंट होता है ना, आप अपनी एल्बो को देखो, इट इज ए राउंड राउंड जॉइंट। ओके, तो ऐसे ही हमारी लेग में भी एक राउंड जॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? नीज। क्या बोलते हैं? नीज। क्या बोलते हैं? नीज। ठीक है, इसको हम हिंदी में घुटना भी बोलते हैं, ठीक है। तो थाइस के नीचे क्या होता है? नीज। और उस नीज की हेल्प से जो हमारी जो अपर वाली थाई है ना, जो हमारी थाई है वो हमारी लोअर लेग से ज्वाइन होती है, ठीक है। तो अब इसमें करके देखते हैं एक बार। दिस इज अवर थाई। थाई के नीचे क्या होता है? एक राउंड जॉइंट होता है, ठीक है, जॉइंट होता है। और फिर हमारी आ जाती है लोअर लेग। अब हम अपनी लेग्स को भी अप डाउन बेंड करते हैं, हम ऐसे से करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं ना, और लेग्स को भी ऐसे बेंड करते हैं, ऐसे वाली एक्सरसाइज करते हैं। जब हम फुटबॉल को किक करते हैं तो हमारी लेग बेंड होती है ना, वो किस वजह से होती है? वो इस वजह से होती है क्योंकि हमारी जो लेग है उसमें नी होता है, जॉइंट होता है, हमारा घुटना होता है। अगर हमारा घुटना हो तो हम भी हमारी लेग्स को अप डाउन नहीं कर सकते जैसे हम अपनी आर्म्स को करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारी लेग्स के बारे में हमने बात की। लेग्स के बाद क्या आता है? हमारा फुट। क्या आता है? हमारा फुट। दिस इज नोन एज अवर फुट। ये हमारे क्या होते हैं? पैर होते हैं, ठीक है। दिस इज अवर फुट। लेकिन जब दो हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? जब एक के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा? फुट। जब दो के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? फीट। क्या हो जाएगा? फीट। ठीक है, वन इज कॉल्ड एज फुट। एक पैर को बोलेंगे तो क्या? फुट। जब दो पैरों की बात करेंगे तो फिट। ओके, नाउ अब हमारी फीट में भी क्या होता है? फिंगर्स होती है ना हमारी फीट में भी। कितनी फिंगर्स होती हैं? 5। एक फुट में कितनी फिंगर्स होती हैं? 5 होती हैं। अब हम हैंड्स की फिंगर्स को तो फिंगर्स बोलते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी होते हैं। तो जो हमारा पैर होता है उसकी फिंगर्स को हम क्या बोलते हैं? टोज। क्या बोलते हैं? टोज। देखो, सी दिस इज अवर लेग, दिस इज अवर फुट। ओके, और जो पैरों की हमारी सारी फिंगर्स होती हैं 1 2 3 4 5, उनको हम क्या बोलते हैं? टोज। क्या बोलते हैं हम इनको? टोज बोलते हैं। ओके, सो टुडे वी डिस्कस्ड ऑल आवर बॉडी पार्ट्स। तो अभी एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सी दीज आर हेयर्स, दीज आर हेयर्स। देन फोरहेड, हेयर्स के नीचे हमारा माथा, माथे को क्या बोलते हैं? फोरहेड। फोरहेड के नीचे आईब्रोज, फोरहेड के नीचे आईब्रोज, 2 आईब्रोज। हाउ मेनी आईब्रोज? 2 आईब्रोज। मेरे साथ साथ आप भी क्या करो, अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को टच करके चेक करो कि आपके पास भी सब सेम सेम है ना। फोरहेड, आईब्रोज, 2 आईज, नोज, लिप्स, चिन, ठीक है। और इस पूरे को क्या बोलेंगे? इस पूरे राउंड को क्या बोलेंगे हम? दिस इज अवर हेड, दिस इज अवर हेड। ओके, नाउ दिस इज अवर नेक। नेक क्या करती है? हमारे पूरे हेड को हमारी लोअर बॉडी से ज्वाइन करती है। ओके, अब नेक के बाद हमने क्या पढ़ा था? हमारी 2 आर्म्स के बारे में रीड किया था। अब हमारी आर्म्स जब हमारी बॉडी से ज्वाइन होती हैं तो उस ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं? शोल्डर। क्या बोलते हैं? शोल्डर बोलते हैं। फिर हमने आर्म के बारे में क्या पढ़ा था? आर्म के सेंटर में क्या होता है? एल्बो होता है। क्या होता है? एल्बो। और इसी एल्बो की हेल्प से हम अपनी आर्म्स को मूव कर सकते हैं, ठीक है, बेंड कर सकते हैं। ओके, और क्या होता है हमारी आर्म्स में? हमारे हैंड्स होते हैं, और हैंड्स में क्या होती है? हमारी फिंगर्स। एक हैंड में कितनी फिंगर्स होती हैं? 5।
तो 2 हैंड्स में कितनी हो गई? 5 + 5 10. ओके, सो नाउ और क्या पढ़ा था? हैंड से पहले एक और बॉडी पार्ट्स रीड किया था ना, दिस इज कॉल्ड एज रिस्ट. दिस इज कॉल्ड एज रिस्ट. ओके, सो नाउ कम टू द डिफरेंट नेक्स्ट पार्ट. नाउ नेक के नीचे क्या? चेस्ट. चेस्ट के नीचे स्टमक. ओके, नाउ लेट्स कम टू लेग्स. लेग्स, सबसे अपर लेग को क्या बोलते हैं हम? थाई बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अपर लेग को थाई बोलते हैं. फिर लेग के सेंटर में क्या होता है? राउंड जॉइंट क्या होता है? नीज. घुटना बोलते हैं उसको. और घुटने के नीचे वाली जो होती है उसको लोअर लेग बोलते हैं. ठीक है, और कंप्लीट को क्या बोलते हैं? लेग. अपर वाली लेग को क्या बोलते हैं? थाइज बोलते हैं. ठीक है, अब लेग्स के नीचे क्या होते हैं हमारे? फीट. क्या होते हैं? फीट. और फीट की फिंगर्स को क्या बोलते हैं? टोज बोलते हैं. ठीक है बच्चों, तो अभी हमने बोर्ड पर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को डिस्कस किया है. तो अभी आप क्या करेंगे? अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करेंगे और चैप्टर नंबर 3 के जो फर्स्ट पेज है वहाँ पर आपको एक पिक्चर में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स शो किए हुए हैं. और आपको क्या करना है? फिर इस पिक्चर को अच्छे से देखना है. ठीक है, कि किस बॉडी पार्ट्स को क्या बोलते हैं, और आप इनकी स्पेलिंग्स भी लर्न कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ. टिल देन, बाय बाय.